ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ। ਕਿਉਂ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ। ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ। ਕਿਉਂ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਾਚਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੰਬਲਨੈਸ ਦੀ, ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਨਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਆਸਤਾ ਸਹਿਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਨਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੀ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਨੂੰ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਚਿਆਰਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਨੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਤੋਲੀਆ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਮੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 11 31 51 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਚਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਖਬਰਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਲੇਨ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਡਲ ਕੰਪਾਸ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਨੀਡਲ ਕੰਪਾਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ, ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੈੱਲਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਹੁਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਮੰਥਲੀ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, आई एम मेंटेनिंग माई स्पीड, बट बैड न्यूज़ डायरेक्शन कोई नहीं है। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਨਿਊਟਰਲ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਰਲ 'ਤੇ ਕਾਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਕ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਸ ਬੈਕ व्यू मिरर इफ़ यू कीप ऑन वॉचिंग यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड, आगे नहीं जा सकते हो। आगे जाने के लिए यहाँ से आंखें हटानी होंगी और सामने देखना होगा। जे मैं पास्ट विच रहिंदा ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਚਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। आई एम नॉट पायस पर्सन, आई एम नॉट शरीफ ज़्यादा, आई एम नॉट ऑनेस्ट पर्सनैलिटी, आई एम नॉट रूहानियत वाला स्पिरिचुअल पर्सन। मैं सदाचारी इंसान नहीं हाँ, मेरे मन उत्ते मैल लगी हुई है।
जे एक ख्याल भी आना शुरू हो जाए कि मैं कुड़ियारा हाँ, तो जपजी साहब की पहली पौड़ी दे इस पहले सवाल की पहली पंक्ति ते असी थोड़ा थोड़ा फिट बैठना शुरू हो गए कि सर यस आई एग्री, मैं कुड़ियारा हाँ। इस अवस्था विच जाके देखिए गुरु पातशाह कहते ने किम सचियारा हुई है, कैसे सचियारा बनते हैं, किम कूड़ा टुटे पाल। मेरे और रब जी दे विचकार मेरी ईगो, मेरी हौमै, मेरी मैल, मेरी कूड़, मेरे मंदे ख्याल, मेरे मंदे सुभाव और मेरा पास्ट दा कुछ इकट्ठा किया और फ्यूचर दी कोई चिंता दा, ये सारा कुछ मिला के जिहड़ी मैल है ना, यह मेरे और रब जी दे विचकार हर्डल है। यह हटाई किवें जाए। मैं पहली गल मान लई कि मैं मैला कूड़ा हाँ, दूजी गल हुण मैं पुछ रहा मेरी मैल और कूड़ दूर किवें कीती जाए। साध संगत जी, इस अवस्था विच असी ते आए नहीं। असी ते सोचते हाँ मैं तो सब कुछ करता ही है, जितने धर्म कर्म के कर्म कांड बताए गए हैं सारे कर्म तो मैं करता ही हूँ। मैं तो ऑलरेडी शरीफ ज़ादा रब जी दा ठेकेदार है ही हाँ। गुरु पातशाह साढ़े वास्ते बहुत नम्रता नाल जपजी साहब की इस पहली पौड़ी में सवाल पेश कर रहे हैं। कोशिश करिए कि असी ये सोचना शुरू करिए कि मैं कुड़ियारा हाँ। किम सचियारा हुई है, किम कूड़ा टुटे पाल। इहदा आंसर किया गुरु साहब ने, हुक्म रजाई चलना। रब जी दे हुक्म रजा नियम अनुसार जीविया कर। एक कोई संस्कृत नहीं है, कोई हिब्रू नहीं है, कोई फारसी नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल लैंग्वेज है। पर मनु गलत आदत पै गई सी। मैं पहली दफ़ा जपजी साहब 1.25 घंटे कीते सी, आस्ता आस्ता मनु याद होना शुरू हो गया। मैं 40 मिनटां च करन लग पिया। उस तो बाद फिर मैं शुद्ध करना शुरू कर दिता। आस्ता आस्ता मेरी स्पीड वध गई 20 मिनटां विच, फिर मैं 8 मिनटां च भी कर लैंदा सी। ये तो मेरा भुलेखा सी कि मैं कर लिया। आई डिड नॉट डू विचार एट ऑल। साध संगत जी, मैं हुण ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि करना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भुलेखा ना खाना। मैं ये सांझ कर रहा पाठ तो करना चाहिए ही है, लेकिन करदियाँ करदियाँ ये विचार करनी है कि करन नाल मैं सचियारा नहीं हो गया। जो किया जा रहा है उस मुताबक 38 पौड़ियां विच मेरी कूड़ उतारन दी एक टैक्नीक, एक विधि, एक गुर, एक तरीका समझाया गया। वो मैनू समझना है, साडा जीवन बदल जाएगा। सवाल है क्यों सचियारा हुई है, क्यों कूड़ा टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना। रब जी दे हुक्म रजा नियम दे अधीन चलना चाहिए है। रब जी का हुक्म रजा नियम की है। द लॉज ऑफ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड। कुदरत के नियम जो हैं ये रब जी की रजा है। हुक्म की गल की और नैक्सट पौड़ी के अंदर हुक्म नू एक्सप्लेन करना शुरू कर दिता। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल अगली पौड़ी शुरू हुई, हुक्मी होवन आकार। हुक्म ना कहा जाए, हुक्मी होवन जी। हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पाई है। हुण इहदा मतलब हुक्म की जदों गल की जा रही है, पहली पहली पौड़ी है, ना तो कोई नुकसान होया, ना घर किसी की डैथ हुई, ना किसी की धी नूं दाज दे ना हेठा साड़िया, कुछ भी उन्हें होया ही नहीं है। असी तो हुक्म रजा का मैना समझा ही डिस्ट्रक्शन होया सी। तुम्हारी बेटी को किसी ने मार दिया, अच्छा रब जी दे हुक्म रजा पाने में रहो। तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ था और पैदा होते मर गया, रब जी दे हुक्म रजा पाने में रहो। असी हमेशा
ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਪਾਣਾ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਘਾਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਖੋਜਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ कि रब जी की रज़ा पाना मीन्स जब कुछ समथिंग कैलेमिटी हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो रब जी की रज़ा। गुरु साहब पहली पौड़ी कह रहे हैं रज़ा अनुसार रविया कर, तेरी कूड़ दूर हो जाएगी। तो फिर मैनू 38 पौड़ियां विच मेरी कूड़ समझाई है, मेरी कूड़ रिकगनाइज कराई है 38 पौड़ियां विच, अते नाल दे नाल कूड़ नू छोड़न दे ढंग समझाए ने। मैं विस्मादत होया, बहुत हैरान होया। मैं तो हुण तक यही सुनिया सी 4 पौड़ियां सिद्धा जोगियां नाल गल कीती हुई है, कुछ पौड़ियां जी पीर दस्तगीर नाल गल कीती हुई है, कुछ पौड़ियां किसी होर नाल गल कीती हुई है। ज्यों ज्यों असी पहली पौड़ी नूं दूजी पौड़ी दे नाल लिंक करके पढ़िया, दूजी पौड़ी नूं तीजी पौड़ी दे नाल लिंक करके समझ रहे सी, तीजी नूं चौथी विच कर रहे सी। एक जपजी साहब की यूनीक लड़ी प्राप्त हुई कि एक कुड़ियार तो सचियार बनन वाले मन की जाचना नूं पूरा करन वास्ते उसनूं समझाया कि कुड़ियार तो सचियार किवें बणीदा है। जे सचियार बन जाए तो यह वाले चंगे चंगे चिन्ह तैनूं प्राप्त होणगे, यह वाले साइंस। जदों इंसान नूं कोई चंगा गुण प्राप्त होंदा है, वो दिन रात उस गुण नूं रैलिश करता है। जदों उसनूं रैलिश करता है और हर किसी नूं दसदा है और आप उसनूं हंडांदा है बड़े माण दे नाल, इनू गाउणा कहंदे ने। तो उन्होंने जिहड़े चंगे चंगे साइंस प्राप्त होंदे ने ना, उन्होंने निशान कहंदे ने, माइलस्टोन्स कहंदे ने। गावे को दात जाने निशान, उन्होंने रब जी दे नाल मिलाप दे रस्ते विच माइलस्टोन्स महसूस होंदे ने। शुक्र है मैनू कोई गाल कटदा है और मैं गाल नहीं कटदा, यह रब जी की दात का एक निशान है, एक माइलस्टोन है। हैडिंग टूवर्ड्स मिलाप विद रब जी, जींदे जी, मरण तो बाद नहीं। कोई मैनू मेरी जात नाल ना बुलाए, मैनू बुरा ना लगे, कोई मेरी सब दे सामने इंसल्ट करे, मैं अपनी इंसल्ट सहार सकां। ए निशान ने, दात है, माइलस्टोन्स ने। वो इन्हों गाउंदा है। कौन? जिसने जाचना की सी मैं कूड़ियार तो सचियार किवें बनना सी। कितना प्रैक्टिकल लिविंग वास्ते सारी बाणी है। और सब तो पहली बाणी जपजी साहब पढ़ते ही रह गए। सो वो इस दात दे ये सारिया गल्लां दे निशान नूं जींदा है। असी अपनी पुस्तक विच उहदा नाम रख दिता है विरला बनन दी जाचना करन वाला मन। विरला मन कोय, विरला बनन वाला। पर होया कि सत्संग जी, मैं महसूस कर रहा हाँ कि मैं ज़रूरी नहीं हाँ कि ठीक हाँ, पर एक गल बहुत स्वाद आई कि भुपिंदर सिंह तू 50 सालों तो बहुत कथा सुनी है, बहुत टीके पढ़े ने, बड़े लोगों को सुनिया है, तो अपने आप को समझदा मैनू बहुत कुछ पता है। ए सारी मत रख दे, जीरो करके इनोसेंट चाइल्ड बेबी वांगू समझण दा यतन कर। ता पता लगा
ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਪਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਵੇ ਔਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਆਸਮਾਨ ਪੇ ਕਈ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਫਰੀਦਾ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋਗੇ? ਸਭ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਭੈੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਭੈੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੈੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਹੈਬਿਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੂੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇਂ ਤੈਸੋ ਹੋਏ तेहे कर्म कमाए। इंसान का मन जैसा सोचता है वैसा करता है, वैसे डूइंग डीड्स वाले कर्म करता है। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਲॉज ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੈੜ ਕਰ। ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਗੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗੰਵਾਰ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਚਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਸਿਸ ਕਾਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ, ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸੀਕਰ ਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਐਮ
इंटरेस्टेड कि मेरी कूड़ दूर करो। जे वो इंटरेस्टेड है वो सुनेगा, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं सुनेगा। सुनन दे नाल काया कलप हो जाती है, सुनन दे नाल रतन जवाहर माणिक वर्गी मत आ जाती है। रतन जवाहर माणिक वर्गी मत बड़ी वैल्यूएबल होती है। और मेरे को काचा धन है, काचे धन के बदले मैं रतन जवाहर माणिक वर्गी मोस्ट वैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल, अमुल, जिसकी कॉस्ट पे ना की जा सकती होवे, वो वाली मत प्राप्त होएगी। मत विच रतन जवाहर, इस करके अगलियां 4 पौड़ियां उन्होंने समझ आईयां कि सुनन दे नाल की अवस्थावां बनदियां सुने दियां। किस नूं? जो कुड़ियार तो सचियार बनना चाहता है। हूसोएवर, अगर हूसोएवर दा मैना मैं एक दे बदले ईच इंडिविजुअल नूं कवां, ईच इंडिविजुअल हूसोएवर, अगर इसका नंबर मैं रख लूँ, आज दुनिया में 6 अरब लोग हैं, तो 6 अरब का ईच इंडिविजुअल अगर सच सुने तो विरला बन सकता है। गुरु पातशाह कहते ने सतगुर दी गल नूं सुन के तू विरला बन सकता है। गुरु पातशाह कहते ने सबना सावरै वंजना, सब मुकलावन हार, फ्यू मुकलावन नहीं, थोड़े थोड़े कुछ मुकलावन हार नहीं, सब मुकलावन हार। हर बीज के अंदर क्षमता है कि वह पेड़ बन सकता है, वो फल फुल दे सकता है, वो छां दे सकता है। हार किसी के अंदर, ਇਹਦਾ मतलब सब कोई। क्यों? क्योंकि गुरबाणी सारिਆਂ वास्ते है। सतगुर सबना दा भला मनाइंदा, सबना दा विच पूरे 6 अरब लोग आएंगे। मेरा ये भुलेखा लथा, मैं तो सोचता सी हज़ारां लखां करोड़ां पिछे कोई एक विरला होंदा है। पर गुरु पातशाह ने उपदेश 4 वर्णा को साझा सारी दुनिया नूं दस्सण वास्ते सिंपलेस्ट लैंग्वेज विच सब दी मोनोपली तोड़ के सादा लैंग्वेज विच रब जी दे नाल मनुख नूं जोड़िया। गुरमत दी यही क्वालिटी है। गुरमत ने कोई तीर्थ मनुख नूं नहीं दिता कि फलानी जगह जाएगा तां ही तेरा उद्धार होएगा। कोई विचोला नहीं रहन दिता, कोई कर्म कांड नहीं रहन दिता। सीधा मनुख दी मालन भूली जग भुलाना, हम भुलाने ना है को कबीरम राम राखे कृपा कराए। सीधा रब जी दे नाल मनुख दा शेक एंड कराया। कोई विचोला, कोई क्लर्जी डिपार्टमेंट नहीं रखिया। बहुत वड्डी है गुरु नानक पातशाह जी की बगावत सी। और लोकी समझते सी जब जब जुल्म होता है तब तब कभी भगवान अचानक आता है। गुरबाणी कहती है सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाए। सारिਆਂ ਦੇ अंदर रहिंदा है, ते जिहड़ा अंदर रहिंदा है रब जी। गुरबाणी विच रब वाहिगुरू अल्लाह गॉड खुदा नूं ही ते सतगुर कहंदे ने। गुर परमेश्वर एको जान। जो बाहर रब जी तू समझदा है वो रब जी तेरे अंदर वसदे ने। फरीदा जंगल जंगल क्या भवें मन कंडा मोड़े, वसी रब हियालिए जंगल क्या ढूंढे, अपने अंदर से खोज लेना। अंदर वाले रब जी जिहड़ी गल सुनांदे ने उसनूं गुरमुख नादंग कहंदे ने। गुरमुख दे ज्यों ज्यों मैं बिल्कुल इनोसेंट हो के पहला सारा जीरो करके देखा, गुरमुख दे खखे नूं सियारी। माई गॉड, गुरु दे मुख तो निकली हुई आवाज़ नूं नाद कहंदे ने।
गुरमुख नादं। मैं बड़ा हैरान ही रह गया। मैं तो सुना सी नाद होता है, कुछ कुछ भांडे खड़कते हैं, कोई दो भांडे कोई चीज़ें खड़कती हैं, कभी कुछ बजता है कभी कुछ बजता है, एक बजाने से बजता है एक खड़कने से बजता है। इनके अलावा बिना बजाए जो बजता है उसको नाद बोलते हैं। और लोग अलबेले होकर सोचते रहते हैं आप बजा कि नहीं बजा, आप सुनाई दिया कि नहीं दिया। ये सीधा जोगियां वाला नाद। पर गुरु पातशाह कहते ने गुरु दे मुख तो निकली हुई आवाज़ नूं ही नादं कहते हैं। है मेरी डेफिनेशन, मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। गुरमुख नादं, गुरमुख वेदं। गुरु दे मुख तो निकली हुई आवाज़ नूं ही वेद कहते हैं। खुदाई पैगाम कहते हैं, तुरकी बाणी कहते हैं। गुरमुख वेदं, गुरमुख रिया समाई। गुर ईश्वर रब जी दे मुख चों निकली हुई आवाज़ की जिहड़ी टैक्नीक है ना, यह तेरे मन की धरती का ईश्वर है। गुर गोरख बर्मा। गो हुंदा है धरती, धरती नूं रखण वाली मत। बर्मा हुंदा जिथों चंगे, जिस मत दे नाल चंगे चंगे गुणां की उत्पत्ति होंदी है। बाहरले किसी कहानी की कोई गल नहीं चल रही। गुरमुख नादं, गुरमुख वेदं, गुरमुख रियासमाई। गुर ईश्वर, गुर गो रख बर्मा। गुर पार बत्ती माई। पार बत्ती हुंदा है पार कराउण वाली, सच दे ज्ञान दी बत्ती मत माई। सुहागवती। ज्ञान राव जब सेजा आवे तो नानक भोग रही। सच दी मत रब जी दे नाल ओत प्रोत होंदी है। ताई गुरबाणी विच रब मीनस गुर, गुर मीनस रब जी। और असी गुरबाणी नूं सत गुर कहते हैं, सच्चा गुर। सच्चा गुर सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं होता, मुसलमानों के लिए नहीं होता, सिर्फ सिखों के लिए नहीं होता, सिर्फ जैनी बौद्धियों के लिए नहीं होता। सच्चा गुर अमीर गरीब सब के लिए, सारी दुनिया वास्ते होंदा है, इक्वली एप्लीकेबल होंदा है। द लॉज ऑफ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड। सारे लॉज सारी दुनिया वास्ते इक्वली एप्लीकेबल होंदे ने। इस करके असी गुरबाणी नूं सत गुर कहते हाँ। जिन्होंने यह भुलेखा पा जाना ये सिर्फ सिखों के गुरु जी हैं, यह उन्होंने भुलेखा है, क्योंकि बाणी नहीं पढ़ी। जेड़े बाणी खोजते हैं, जेड़े बाणी पढ़ते हैं, जेड़े बाणी समझते हैं, वो अंग्रेज़ गोरियां तो लैके हिंदू मुसलमान और जो कोई दुनिया के लोग बाणी पढ़ते हैं, वो आके सानू साझ करते हैं। ऐ ते जी कमाल हो गई। गुरु पातशाह ने नी ग्रेट गल्लां सारिया दुनिया के साझी वालता दियां कीतियां हन। वो गुरु की गल नूं सुनदा है, सुन के रतन जवाहर माणिक वर्गी मत प्राप्त करता है। सुनिया दियां सारियां अवस्थावां नूं नोट करता है कि सुनन दे नाल कला ये वापरदी है। चारों पौड़ियां विच इको कॉमन मैसेज यह रहिंदा है कि ज्यों ज्यों सुनता है त्यों त्यों दे अंदर एक चेंज आती जाती है। अवगुणा तो छुटता जाता है, अवगुणा नूं रिकगनाइज करता है। उन्होंने फायदा पता की होंदा है? नानक भगतां सदा विगास, सदा विगास विच रहिंदा है, खेड़े विच रहिंदा है। ये चारों पौड़ियां का सेंट्रल आइडिया रहाओ मान सकते हाँ। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। जे कोई मनुख सुने ही ना तो दुखी दुखी रहिंदा है, त्यूड़ी चढ़ी रहिंदी है, नफरत करता रहिंदा है। कोई बंदा अपना लगता है, कोई चंगा नहीं लगता। किसी की गल सुनन सार उन्हें सत्ती कपड़ी अग लग जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सुनिया नहीं, दुख पाप का नाश होया नहीं। दुखी दुखी तो रहेगा भाई, तू सुन तो ले। सुनन सार काया कलप हो जाती है। सुनने से काया कैसे कलप हो जाती है? ये श्रवणों मेरे साचा सुनने नूं पठाए, साचा सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। देखो गल सुनन दी चल रही है। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, अच्छा सुनने से मन तन हरा हो जाता है। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस माणी, अच्छा रसना च रस आ जाता है। सुना था यहाँ से, रस यहाँ पर आ गया।
कैसी कैमिस्ट्री गुरु पातशाह तुसी बयान करते हो। दुनिया के किसी मनुख को कोई गलत फहमियाँ हो सकती है, किसी मनुख को कोई डिस्टरबेंस हो सकती है, किसी मनुख को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई मनुख कुछ भी सुनने सर बायस्ड हो सकता है, पर जे सुने तो चेंज हो सकता है। वो सुनना क्यों नहीं चाहता? मैं ना मानू करके। वो दादा जी सुने ना जेडे आके घर कहते हैं मैं 1 लाख रुपए की शर्त लगा के आया, खरगोश दियाँ 3 टंगा होंदियाँ। कोल पोतरा खड़ा सी, दादा आप शर्त हार जाओगे, खरगोश की 3 टांग नहीं होती, ये देखो मेरी किताब में फ़ोटो 4 टांगें होती हैं। दादा कहता नहीं, कोल दादी खड़ी सी, तुसी हार जाओगे। पोतरा ठीक कह रहा, खरगोश दियाँ 4 टंगा होंदियाँ। वाइफ आई, तुसी शर्त हार जाओगे, खरगोश दियाँ 4 टंगा होंदियाँ। कहता मैं शर्त नहीं हारांगा। वो कहते क्यों? कहता मैं मन्नांगा ही नहीं। जे मैं मन्नांगा ही नहीं तो 3 ही रहणगियां ना। साध संगत जी, असी अपनी लिसनिंग खोलीए। जिस इंसान की लिसनिंग ना होवे वो कन्ना दा कच्चा होंदा है। उन्होंने किसी बारे कोई भी कुछ कह दे वो कन्ना दा कच्चा होंदा है। जो इंसान कन्ना दा कच्चा होंदा है वो लाइतबारी खांदा है। कन्ना दे कच्चे इंसान नूं निंदा सुनना बहुत पसंद आंदा है। कन्ना दे कच्चे वाला इंसान क्योंकि रसना नाल लिंक है, इस करके जबान नाल निंदा भी करदा है। वो सुनिया दी अवस्था नूं माणदा है। जिहड़ा कुड़ियाड़ तो सचियार बनना चाहता है, उहदा नां असीं रखिया विरला बनन वाला मन। करदे करदे असी इसे मन दी इस काया कलप होंदी गल ते अगे पहुँचे, मन्ने की गत कही ना जाए। उन्हें सुनिया, सुनेगा तो मन्नेगा ना। असी पढ़ते हाँ, सुनते तो है ही नहीं हाँ। जे सुनिया ही नहीं तो मन्नांगे की। सो जब उसने सुनिया तो एक गल बड़ी अजीब सामने आई, क्योंकि मैं ठान लई सी साध संगत जी, मैं अगली पंक्ति तां पढ़ांगा। पहला इस पंक्ति अंदर 5 अखर ने, 5 अखरां दी मैनूं ग्रामर समझ आनी चाहिए है, फिर इन्हां दा अर्थ समझ आना चाहिए है, फिर इसका भाव अर्थ समझ आना चाहिए है, फिर इस पंक्ति दे नाल जिहड़ी दूजी पंक्ति राइम विच है वो समझ आनी चाहिए है, फिर इस पंक्ति की लड़ी पिछली पौड़ी दे नाल अगली पौड़ी नाल इंटरलिंक्ड किवें है, मैनूं वो लिंक भी समझ आना चाहिए है। इस करके मैनूं 3-4 साल लग गए, जिसनूं मैं 7 मिनटां च पढ़दा होंदा सी। मैं हैरान ही रह गया। मैं सोचन लग पिया, जदों मैं हुक्मी दी पौड़ी ते पहुँचिया सी तो मैनूं उत्थे आर्टिकल लिखना पिया। साध संगत जी, हुक्मी 2 होंदे ने, एक हुक्मी होंदे ने रब जी, दूजा हुक्मी होंदा है मेरा मन। आर्टिकल लिखिया कि हुक्मी दी पौड़ी दे एंटर करन तो पहला, पौड़ी नंबर 2 ते एंटर करन तो पहला उत्थे आर्टिकल लिखिया हुक्मी 2 किस्मां दे होंदे ने। रब जी दा हुक्म जे मेरा मन मान लवे तो मेरा मन रब जी दे हुक्म अनुसार मेरी बॉडी नूं चलाएगा, पर मेरा मन जे रब जी दा हुक्म सुने ही ना, पढ़े ही ना, नानक लिखिया नाल मेरे अंदर है, उन्होंने पढ़ना चाहता ही ना होवे, सुनना चाहता ही ना होवे, तो मेरा मन अपने हुक्म अनुसार चलाएगा ना मेरी बॉडी नूं। जिस इंसान का मन अपनी मन की मर्जी करता है, यह पूरी दुनिया में डिसाइडेड है। हम सब का शरीर वैसे एक्शन करता है जैसे हमको हमारा मन कहता है। अगर मन सतगुर की मत अनुसार कहेगा तो शरीर वैसे करेगा। अगर मन सतगुर की गल सुन लवे तो मन कहेगा मन मेरे सतगुर के पाने चल। ओए मेरे मन कहेगा यार शराब छड़ देंदे आ। मन कहेगा सतगुर जी कहते ने खंडे की पौल छक लै, यार छक लेनी चाहिए है। मन कहेगा सतगुर जी कहते ने अमृत वेले उठिया कर, चल उठ। मन बॉडी नूं जगाएगा। सतगुर जी कहते ने बाणी पढ़िया कर इशनान करके, मन शरीर नूं कराएगा
पर जे मन ने सतगुर की गल नहीं सुनी हुई, मन कहेगा अमृत छकना मुश्किल है, शराब छड्डनी मुश्किल है, मन कहेगा मनु ने जपजी साहब भी नहीं पढ़ना आंदा, मन कहेगा आजकल किस कोल टाइम है जी। मन सुन रहा है कि गुरुद्वारे जाना चाहिए, पर मन कहेगा सुबह नींद नहीं खुलती, अभी तो पहले अखबार लेकर आओ, पहले बेड टी लेकर आओ। इतनी देर में गुरुद्वारे भोग ही पै गया, शरीर कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि मन एक सुनता नहीं सी, मन अपनी हुक्म चलांदा सी। सो यह शर्त रहेगी, मन अते रब जी, ए दो हुक्मी ने। रब जी का हुक्म सुन के मन चलाए बॉडी, तो इंसान सदाचारी बनता है। अगर रब जी दी ना सुन के चलाए तां भी चलांदा बॉडी नू मन ही है, पर पुठे सीधे पासे पाई रखदा है। मन सुनदा क्यों नहीं? मन जाने सब बात, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात, काहे की कुशलात। हाथ दीप कुएं पर है, हाथ दीप कुएं पर है, मन जाने सब बात वीर, मन जाने सब बात। जो मन में भुलेखा पै जाए ना, मैनू तो सब कुछ पता है, मन नहीं सुनता। ए कन एज इट इज़ ही रहते ने, पर मन जे ना सुने, काना दे कोल कोई ताकत नहीं है, कन सुन जान। इस करके क्या, मन कर कबहू ना हर गुण गायो। मन करके जीबा ने गाए नहीं, मन करके कन्ना ने सुनिया नहीं, तो सारा यह शरीर गड़बड़ है। गुरु पातशाह कहते हैं जो ये भुलेखा पै जाए ना, मेरे को सब कुछ पता है, ए अवगुण है। हुण पूरा नरक शुरू हो गया। सारे नरक शुरू होने का पहला सिम्टम, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। अगर ये सोचता है मुझे सब कुछ पता है, यही तो अवगुण है, क्योंकि सब कुछ पता था, ओवर कॉन्फिडेंस दा भुलेखा। जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात। अब कैसे कुशल हो सकता है? अब तो तू सुखी नहीं हो सकता। हाथ दीप कुएं पर है, हाथ दीप कुएं का पर मतलब की होंदा है, अंदर रब जी रहिंदे ने, रब जी की जोत बलदी है, पर तू ठुड्डे ठेडे कर्म कांड पाखंड इधर उधर भटकदा तीर्थां ते रहना है। कुशल नहीं है तू, सुखी नहीं है। सो उन्होंने समझ आती है, जे मैं कुशल और सुखी होना है, वो मन जाने सब बात दे बदले सुनन दी अवस्था नू सिंसीयरली मानता है, सिंसीयरली सुनता है। सर आपने क्या कहा? सुनेगा ताही तो बदलेगा। जो नहीं सुनता उसनू विकार सतांदे हन। क्लर्क नू बुलाने वास्ते बॉस ने कहा चपड़ासी नू, बैल बजाई, चपड़ासी अंदर आया, क्लर्क को बुला के लाओ जल्दी, अभी इसी वक्त। हो गया उहदे कमरे च, आपको साहब बुला रहे हैं। क्लर्क नहीं आया, 10 मिनट बीत गए, बॉस ने फिर बैल की, क्लर्क को जल्दी बुला के लाओ अभी इसी वक्त। दोबारा गया, साहब बुला रहे हैं, नहीं आया। तीजी बारी 10 मिनट बाद साहब कहते तुम्हें कहा था क्लर्क को बुला के लाओ, बुलाया नहीं? कहता साहब मैंने बुलाया हुआ है नहीं। कहता अच्छा अब तुम मत बुलाने जाओ, मैं बुलाने जाऊँगा। गया साहब क्लर्क के कमरे गया, जान सर उन्होंने कस के एक थप्पड़ मारिया, तुमको 3 बारी बुलाया सुना नहीं? कहता सर सुनाई तो हुण दिता है।
ਇਹ ਜੋ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कबीर जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहा जाए। जम की है? विकार। लोकी सुनते नहीं हैं और क्रोधी और नफरत और हेटरेड और वितकरे दे जम उन्होंने सताते रहते हैं। सुन लैन तो सारा क्लीयर हो सकता है। कुड़ियार तो सचियार बनने वाला मन सुनता है और उन्होंने पता है जितना मैं सुनांगा उतना मैनू विकास खेड़ा आएगा। अगली पौड़ी आई, मन्ने की 4 पौड़ियाँ आईयाँ और मैं बड़ा ही हैरान रह गया कि असी सुनते सा मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पीछे पछता है। अब हम सबको सब कुछ मालूम तो है ही है, इसलिए हमने इसके अर्थ अपनी जगह सोच लिए। जेड़ा मनदा है रब जी नूं ओदी गत कही नहीं जा सकती। जदों वो रब जी दे गुण गाण लगदा है तो रब जी दे गुण बेअंत होंदे ने, वो पछताना शुरू कर दिंदा है। मैं तो यही सुने सन। मेरे पिताजी सुंदर हैं। मैं क्या पापा जी तुसी सुंदर बड़े हो। पापा जी तुहाडी पग बड़ी सुंदर है। पापा जी तुहाडियां अखां बहुत सुंदर है। पापा जी तुसी बड़े गोरे चिट्टे रंग दे हो। मैं अपने पापा जी के 3-4 गुण सुनाए और मेरी दादी आई कहती तेरे पापा जी होर भी गुण। मैं हुण पछताना शुरू कर दांगा, ओए बड़ा पाप कर दिया मैंने, अपने बाप के 4 गुण गा दिए। जे को कह पीछे पछताए दे मैंने, असी तो यही समझे हुए सन। अगर भगवान जी के बारे में कुछ कहा वो उससे ज्यादा निकले तो पछताना पेगा। जदों सुनता है ना, सुन के जदों मनदा है, उन्हों जो जो सच सच दसिया जाता है, किनू? कुड़ियार तो सचियार बनन वाले मन नूं। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे उन्हों जदों कोई भी सच दसिया जाता है, दसदा कौन है? नीच कर चो अंदर रब जी, रजाई चलना है ना। अंदरों जो कुछ किया जाता है, जे को कहे पिछे पिछे होंदा है। उस तो बाद सुनन तो बाद पछ पछ दे छछे नूं औंकड़ है। ग्रामर व्याकरण असीं इत्थे निखेड़ सकते हैं उसनूं समझण वास्ते। जे को कहे पिछे पछ ताए ताए हुंदा तप के पैशन नाल उसनूं आफ्टरवर्ड्स फॉलो करदा है। जे को कहे जब कोई सच मेरे को बताए और मैं सिंसियरली उस मार्ग पर जाना चाहता ही था, मार्ग नहीं पता था। तुसी कदी ट्राई कर लेना, तुसी कहो जी मैं फलानी गली अंदर जाना चाहता, 6 नंबर गली अंदर जाना चाहता। 6 नंबर गली बैराठी कॉलोनी या बैराड़ी कॉलोनी जो भी है, मेरे को उसका रास्ता नहीं पता। मैं 3 घंटे से भटक रहा हूँ और मेरे बच्चे भी साथ, पत्नी भी साथ और ये बुजुर्ग माँ भी है। हमको रास्ता बता दो। जदों कदी कोई रास्ता दसे तां तुसी अपने भटके हुए रस्ते छड्ड के सीधे रस्ते जाओगे ना, या फिर तो नहीं ना भुलोगे। फिर तो उस पासे जे को कहे पीछे सुनने के बाद पछ आफ्टरवर्ड्स ताए तप के उस पासे टूर पे। शुक्र है आपने रास्ता बताया। जे को कह पीछे पछताए। मन्ने दियां सारियां पौड़ियां तो बाद उन्हें असंख जप दियां सारियां पौड़ियां सुनियां। सुन के ओदी नवीं सृष्टि की साजना उसनूं समझ आती है और वो चंगे चंगे गुणों का वपार करन बारे गल नूं समझदा है। उन्होंने अमूल गुणों का वपार कहते हैं। अमूल गुणों का वपार करते करते उन्होंने 100 दर समझ आता है जिथे 100 पुरख जी रहिंदे ने, और 100 दर के अंदर जाके उस खजाने का, जिस खजाने के पातशाह मालक रब जी ने, कहु नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने दयार लाए, सो एत खजाने
लियार लाए। हम तनवंत पागठ सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਉਹ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸੋ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਉਹ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦਨੀ जुग जुग एको बेस, आदेश तिसै आदेश, आदेश तिसै। उस संतोख दियां मुंदरां तो लैके सारों 4 पौड़ियां में जो सिद्ध जोगी गल्लां करते सन, गुरु पातशाह कहते ने तुसी बाहर 1 घंटे पाई फिरदे हो, मुंदरा पाई रखदे हो। संतोख दी मुंदरा पानी चाहिदी है मन दे कन्नां दे उत्ते। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਵੇਸ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਵੇਸ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਬ ਆਫ ਆਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ, ਸੋਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਤਨ ਭਾਵ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 1 ਤੋਂ 2 ਜੀਬਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, 2 ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋ, 1 ਦੂ ਜੀਬੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ 20 ਲੱਖ ਜੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਉਹ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੂੜਿਆਂ ਦੀ ਠੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਕੀਤੇ।
कई लोग हथ चो मकैनीकल जी एक मशीन फड़ लेंदे ने, दबाते रहते हैं। मैं इन्नी वारी किया है, कई कापियां च लिखते रहते हैं गिणतियां मिणतियां, ए कूड़ियां दी ठीस कहलाता है। अगे उसनू समझ आता है कि मेरे जोर जबर दे नाल मैं सच्चा सुच्चा नहीं बन सकता। आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगण देना जोर, वो पौड़ी पढ़ता है और उसनू एक गल समझ आती जाती है, जिस हथ जोर कर वेखा सोए नानक उत्तम नीच ना कोई। दुनिया का कोई भी नीच इंसान जोर जबरदस्ती दे नाल उत्तम नहीं बन सकता। इत्थों ही गल समझ आई, नीच कोई इंसान जात करके नहीं होंदा। गुरमत जात पात मंदी ही नहीं है। पर मेरा मन जदों मंदे ख्यालों के नाल है तो इनू नीच कहते हैं। ये अपने मन की मत दे नाल जोर जबरदस्ती दे नाल तीर्थां ते भटक के और दुनिया भर के कर्मा कांडां दे नाल नीच तो उत्तम नहीं हो सकता। जिसा जोर कर वेखा सो नानक उत्तम नीच ना कोई। पहली पौड़ी विच उसने उत्थे हुक्मी की पौड़ी सुनी सी तो उत्थे आया सी हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइया। उन्होंने सारी गल समझ आ रही सी, नीच तो उत्तम किवें बनते हैं, उन्हें सुनिया सी। इत्थे उन्होंने बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि मैनू अपनी कूड़ छड्डदे जाना है, चंगे चंगे गुण संभालते जाना है। चंगे चंगे गुण किहड़े हुंदे ने? पंच प्रवाण। पंच का मतलब 5 नहीं होंदा, पंच का मतलब है चुन 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 के चंगे 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 बेअंत गुण। पंच प्रवाण, पंच प्रधान, पंचे भावें दरगाह मान। रब जी की दरगाह अंदर है और रब जी की दरगाह के अंदर मान प्राप्त करने वास्ते चंगे गुण होने चाहिए ने। चंगे गुण किहड़े होंदे ने? नम्रता, हलीमी, मिठास, हमदर्दी दी नज़र, वितकरा किसी नाल ना करना, अमीरी गरीबी छड्ड देनी, जात पात छड्ड देनी, शीतल सुभाअ होना, छेती ना छिथे ना पै जाना, अपनी पेशेंस नू लूज ना करना, सबर अंदर साबरी, तन इवें जलेन, होण नजीक खुदाए दे, भेत ना किसी दे, सबर अंदर रहना, संतोखी रहना। ਇਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਸੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। गुरु पातशाह कहते हैं काया अंदर सब कुछ वसै खंड मंडल पताला। एक जगह कहते हैं काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलकर सृष्टि पाई। अच्छा, मैं तो सोचा सी बाहरली सृष्टि बनती है। अच्छा, मेरे अंदर भी कोई सृष्टि बनती है? मेरे अंदर ही कोई पाप पुन हैं, मेरे अंदर ही मंदे ख्याल हैं। और मंदे ख्यालों पाताला पताल भी कहते हैं। जितने भैड़े मंदे ख्याल होंदे ने उन्हें पताली ख्याल कहते हैं, जितने चंगे चंगे ख्याल होंदे ने उन्हें आगासी ख्याल कहते हैं। और ये गल समझ आई कि बाहरली सृष्टि भी लोग एक धरती एक आसमान समझते सी। गुरु नानक पातशाह ने क्या नहीं, पताला पताल लख आगासां आगास, अनेका धरतियां अनेका पताल हन। पर गुरमत दे इस पक्ष नूं वरत के एक लड़ी विच जदों असीं उहनूं समझ रहे सी तां मैनूं पता लगा मेरे अंदर भी पतालां पताल वर्गे अनेकां मंदे ख्याल हन ते चंगे चंगे आगासी ख्याल भी। ये डिपेंड मेरे ते करदा मैं किहड़े यूज़ करा। मन की मत दे करा तां पताली ख्याल, सतगुर दी मत दे लवां ते उच्चे ख्याल। उच्चे ख्यालों नाल बनता है जीवन उच्चा। हुण जिहड़ा इंसान खंडे की पौल छक लेगा उसका जीवन उच्चा बनेगा। वो शराब नहीं पीन जाएगा, वो राती 2-2 बजे तक पार्टियां ते नहीं जाएगा, वो अमृत वेले उठ ही जाएगा। इस आस्ता 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 चंगे चंगे गुण कमा कमा के
ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਖੇੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਮਾਰ ਪਾਉਣ ਪਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪੀ ਪਵਨ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਕੂੜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਨਾ ਕਿ ਕੁੜਿਆਰ ਹੂੰ, ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਆਖੋ ਦੇ ਖੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਆਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏਗਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛਕਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਰਹਿਤਾਂ ਕੁਰਾਤਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਖਸੀ ਔਰ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤ, ਔਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਸਤਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਫਸਵਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਮਰਤਾ ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਬੂਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ 36 ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵਾਂ। 36ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੋਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ 36 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ
ज्ञान प्रचंड ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद तिथै नाद विनोद कोड आनंद श्रम खंड की वाणी रूप श्रम खंड की वाणी तिथै काढ़त घड़िए बहुत अनूप तिथै काढ़त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाए ताकियां गल्लां कथियां न जाए जे को कह पिछे पछताए जे को कह पिछे पछताए तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़िए सुरा सिधा की शुद्ध तिथै कड़िए सुरा सिधा की शुद्ध।